जाता हूँ मैं भी अभी। सुबह भी बोल रहे हैं अम्मी बस 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 थोड़ी देर और कह रहे ना बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो स्लाइड नज़र आ रही है आप सबको? यस सर आ रही है। जी, तो कल हमने लास्ट टाइम केस किया था। उसके अंदर जब देखा था कि उसको हमने चेक किया था कि द गिवन इक्वेशन इज सेपरेबल, इफ नॉट देन चेक होमोजीनियस, if not then we check reducible to homogeneous, and we saw first case where the ratio between a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Now today we have to do and we check again this situation or condition or case, either the ratios of a's and b's are equal or not. So for this purpose, again we check the given equation, that is example number 5 for today. um, the following equation या given equation is separable, not. Now again check, is it homogeneous, not. Now third one is reducible to homogeneous, yes. Why? The power of x and y are 1 1 and with constant terms in both factors from in dx and dy, that is 1 or minus 1. Okay, now check the condition or case, which case we apply
equal or not equal. Okay, now check. X and y with dx, we check the coefficient of x with dx, that is 2 divided by 4, means half. Now ratio between, again ratio between a1 and a2, ये क्या होगा, a1 is 2 and a2 is 4, so 2 upon 4. Now on the other hand side, right hand side, the coefficient of y with dx, that is b1, and the coefficient of y here is 2 with dy, that means b2. Now checking the ratio between b1 and b2, that is 1 upon 2. So we see here, after cancellation of 2 upon 4, that is exactly equals to 1 upon 2, that is b upon 2. Okay, the ratio are same of a1 and a2 and b1 and b2. ठीक हो, ये ratio same है. So now we use another substitution, that is, again we write here, for suppose if this ratio is not equals to each other, so we again applied the previous method that we have done yesterday. ठीक है, उसमें हम क्या करते थे, we taking let करके small x equals to capital X plus h and small y equals to capital Y plus k. Okay, then we proceed according to the method. Now today we have case equality case. Now in this case we use, we taking variable z, and अच्छा ये हो सकता है कि मे बी which two terms we taking or we taking equals to z. तो हम ये देखेंगे कि these two सर माइक बंद है आपका. okay, again which term we take equals to z, either 2x plus y or 4x plus 2y. So you have to take small term, that means के हो सकता है possible कि 2x and 2 or 4x, which term is small, 2x, and this 4x is a multiple of 2x. Why कैसे, if we multiply this factor by 2, so that will be 4x and 2y. okay, that is exactly equals to this, है ना, ये हो जाएगा ना, ये 4 हो जाएगा बिल्कुल इस जैसा, और अगर 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2y होगा. तो इट मींस वी हैव टू टेक द स्मॉलेस्ट वन. तो ये स्मॉलेस्ट वन नहीं है, दिस इज स्मॉलेस्ट वन एंड दिस इज अ मल्टीपल ऑफ दिस स्मॉलेस्ट वन. ठीक है, तो नाउ क्लियर इज क्लियर कि z is taking z equals to 2x plus y, that is also mentioned here. ठीक है, यहाँ पे भी दिखाया हुआ है. ओके,
Now in this situation, again you have to take derivative of z with respect to x. Why we taking with respect to x derivative of any variable? Because in the given equation we have derivative with respect to x, that's why. देखिए ना ये dy upon dx आ रहा है, तो it means the derivative of y with respect to x already in the given equation. Now the upon this we think about the taking derivative of any another variable, just like y, just like z, we taking derivative with respect to x as mentioned in our given equation. Okay, तो ये क्या हो जाएगा, 2x means only 2 and taking derivative of y, that is dy upon dx. Okay, so first of all, you have to simplify this equation like this. Shifting this term to the right hand side with opposite sign means negative. Okay, okay, implies that after putting we are shifting our y variable, y and x variable in the form of z and x variable. So from here
we taking the value of dy upon dx, that is equals to dz upon dx minus 2 equals to dy upon dx. ठीक है, तो दैट विल बी, ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन एक्स माइनस 2. ठीक है, ऑन लेफ्ट हैंड साइड. For 2x plus y, we have taken 2x plus y here equals to z. Now substitute the value of 2x plus y, that is z. 2x plus y equals to z plus 1. This plus 1 remains same. And similarly in the denominator 2x plus y, ठीक है, we can write 2x plus y you may also write this simplification okay. So again this 2x plus y equals to z and outside 2, so we may write like this, okay, 2 that is z, because we can see here क्या हो जाएगा 2z minus 1. Okay, understand? Sorry, ये minus 1 है. Okay, now the next step is now open this bracket with minus sign, ये जाएगा minus z minus 1
and this minus 2 shifted towards right hand side with opposite sign means plus 2. Okay, now taking LCM between these two terms, that will be now taking LCM with 2 of with denominator क्या हो जाएगा प्लस 4 Z minus 2. Now simplified, right hand side क्या हो जाएगा इसके साथ प्लस करेंगे माइनस जेड 4 प्लस 4Z मीन्स 3 3Z ओके और माइनस 1 एंड माइनस 2 मीन्स माइनस 3 ठीक है डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम we also take common 3 outside and remaining term Z minus 1. Okay. Now this equation has become separable after this substitution. ठीक है the given equation has become separable after this substitution. You can see here in this step all Z terms shifted towards you can transform or shifted all terms of Z towards dx and all x towards dx sorry okay so you can easily see here कि 2Z minus 1 upon Z minus 1 okay dz equals to 3 dx. Okay, any confusion? Now in this step you can easily taking integration on both sides. तो इसके लिए you have to take you have to add
you have to add -1 and +1 in numerator. Why we have done this? Because we have to make the above term like denominator. ठीक है, इस डिनोमिनेटर की तरह मैं ऊपर बनाना चाहता हूँ. We want to make denominator like denominator. That's why we add -1 and +1 in numerator. ठीक है, because of simplification. So we can write above term like this: 2z - 2. Okay, and +1. And also we breaking LCM. We breaking LCM in two terms like this and like this. ठीक है, so taking 2 common outside, the remaining term will be like this. Cancel the whole term. ठीक है, now these two term, now we can take integrate of these two term very easily. Okay, so we must say here
Now in this stage, we can take integral on both sides easily because we know the integration of this type of term, and taking arbitrary constant on right hand side. So the integral of 2 is 2z, and the derivative of z plus 1 is in numerator, present is in numerator, that is 1. So we must write, or we taking after putting formula of integration, that is ln z plus 1. Why we write this one? Because the derivative of numerator is present on numerator. Okay, so equals to integral of 1 is x and 3 remains same, that is 3x plus c. Now you have taken integral of the given differential equation but in terms of z. Now you have to return value of z. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, z की वैल्यू वापस कर देंगे, तो जहाँ से चले थे वहाँ दोबारा पहुँच जाते हैं. नाउ रिप्लेसमेंट ऑफ z, इसको आप बल्कि यूँ लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट आफ्टर पुटिंग वैल्यूज ऑफ z. ठीक है, तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई. Okay, and ln 2x plus y and plus 1 equals to okay, and this is your final required solution of the given differential equation. If you simply you want to simplify more, to you can multiply this 2 by this factor. ठीक है, तो आपके पास ये और ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी, एंड दैट इज़ योर फाइनल रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन of a given differential equation in the form of x and y. ठीक है, तो ये इसका सारा सॉल्यूशन है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ कम टू, ये सारा जो उन्होंने बताया वो हमारा भी यही आया है. ठीक है, ओके. तो बेसिकली हुआ क्या है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4x प्लस वाई. ठीक है, तो 4x प्लस वाई इस 3x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, x, सिर्फ x बच जाएगा, x प्लस वाई. ठीक है, x प्लस वाई बच जाएगा, इसीलिए यहाँ पर आपको ये x नज़र आ रहा है. ठीक है, x प्लस वाई बचेगा, और यहाँ पर ये 2 भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2y हो जाएगा, तो इसीलिए ये 2y नज़र आ रहा है आपको. ठीक है, तो x प्लस 2y, ये ln हमारा इसी तरह आया इक्वल्स टू c. तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने यहीं इसी पेज पे कर दिया. ठीक है, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये एक दिस इज अनदर केस ऑफ रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस. ठीक है, तो दो ही केस थे, हमने दोनों पढ़ लिए. तो यहाँ पर हमारा जो है वो वी हैव कंप्लीटेड अवर वर्क द टॉपिक अबाउट द टॉपिक होमोजीनियस एंड रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस. ठीक है,
ये अब एक्सरसाइज है इसके ऊपर, ठीक है। ये एक्सरसाइजेस का वाले हैं, ये आपको करने हैं, और हो सकता है इसमें से कुछ एक चंद एक करें हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज की स्लाइड्स ख़त्म होती हैं। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं कि नेक्स्ट पे क्या है इससे। नेक्स्ट ये है, देखते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पर ये जो सवाल हैं, चंद एक सवाल दिए हुए हैं, ये दोबारा मैंने ऊपर खुद लिख दिया हाथ से कि सेपरेबल इक्वेशंस के हैं, ठीक है। ताकि आपको, वैसे तो लिखने नहीं चाहिए थे, अब आपको पहचान लेना चाहिए। यू शुड रिकॉग्नाइज कि आइदर द एनी डिफरेंशियल इक्वेशन बिलोंग्स टू विच वन, विच मेथड। तो मैंने डेमोस्ट्रेट किए हैं, आई हैव डेमोस्ट्रेटेड हाउ टू रिकॉग्नाइज कि either given equation is separable, homogeneous और reducible homogeneous in my previous lectures, ठीक है। तो बार बार मैं रिपीट करवाता हूँ कि ये कैसे हो जाता है अगर शिफ्ट हो जाएं तमाम x डी एक्स की तरफ, और तमाम डी वाई की वाई डी एक्स, सॉरी, तमाम y जो हैं वो डी वाई की तरफ से तो सेपरेबल होती है। और अगर हम किसी इक्वेशन को डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जी ऑफ एक्स कॉमा वाई में लें, और उसके अंदर से होमोजीनियस की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, और तमाम जो है वो एक्स और जो एफ और वाई एफ और जो जी जो जो आपके फंक्शंस होंगे उसमें से सेम डिग्री बाहर निकले, ठीक है ना, टी की या लेमडा की, तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। और रेड्यूसिबल होमोजीनियस के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्स और वाई की पावर वन वन होगी, और उसके साथ एक एक्स्ट्रा टर्म होगी जो कि हमेशा कांस्टेंट होगी। तो ये रेड्यूसिबल होमोजीनियस है। तो अगेन मैंने रिवाइज करवा दिया कि तीनों मेथड्स में किस तरह पहचानेंगे आप, ये कौन सी गिवन है और कौन सा मेथड लगाना है। ओके, ये कुछ सवाल हैं, ये आपने करने हैं, शायद इसमें से कुछ कर भी लिए हमने, ठीक है। ये क्या बात है, ये तो हमने की है सारी। नहीं, ये नहीं, इसकी जगह पे दूसरा लाते हैं। ये लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। फोर्थ है, फिफ्थ पे तो नहीं आएगा। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दूसरा लेते हैं, एक और है। थोड़ी थोड़ी देर लग रही है। सर 2 भी बज गए। ठीक है, पता नहीं यार, मैं नजर नहीं कुछ गलत कर लिया।
ओए, कितना टाइम हो गया? एक मिनट, थोड़ा सा मुझे देखने दो। क्या आपको ये स्लाइड नज़र आ रही है जिसके ऊपर ये 6 लिखा हुआ है? फॉल 6 डिफरेंशियल इक्वेशन केमिकल 19 फॉल 6 PDF, यस जिसका सर, दिख रही है। यहाँ पे मेरा कर्सर है। तो इसमें आगे चलते हैं। अच्छा, ये फिर ये रिपीटेशन हो रही है कि नॉन होमोजीनियस जो सॉरी पहला केस आ गया जिसमें नॉट इक्वल्स टू रेशियो बिटवीन नॉट इक्वल्स टू जो होंगे वो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 रिड्यूसिबल है। ये इसकी एग्जांपल है जो हम पहले भी कर चुके हैं, सारा करवा चुका हूँ मैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये वाली एग्जांपल आ गई जिसमें जो रेशियोज हैं वो इक्वल होते हैं, ये भी हमने अभी अभी किया है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आ गई है, ये इसमें आपने ये एक्सरसाइज करने की कोशिश करनी है। और यहाँ पर ये कुछ सवाल आ गए हैं, है ना? तो इसको हम थोड़ा देखते हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा बड़ा भी करना पड़ेगा। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ हुआ है, ठीक है ना? अब आपके पास अगर ये ऊपर जो क्वेश्चन दिए हुए उसी का सोल्यूशन है कि कैसे करना है जी, है ना? तो इसमें देखें, ये पहले इसको एज इट इज़ लिख दिया और इसको जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट किया है माइनस साइन के साथ, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, डी वाई अपॉन में डी एक्स लिए हैं और इसे नीचे भेज दिया गया है। फिर हम चेक करेंगे ये होमोजीनियस है नहीं, वैसे तो ये होमोजीनियस यहीं चेक हो जाएगी। सबसे पहले तो सेपरेबल चेक करेंगे, सेपरेबल नहीं क्योंकि एक्स जो है वो यहाँ से अलग नहीं हो सकता, ना यहाँ से अलग हो सकता है और ना ही शिफ्ट होगा, तो सेपरेबल नहीं है ये। और ये जो है इसको होमोजीनियस चेक करते हैं, होमोजीनियस है या नहीं। दूसरा मेथड हम लगाएंगे तो होमोजीनियस है ये, क्योंकि इन दोनों में से अगर हम लेमडा लेमडा पुट करते हैं या टी टी पुट करते हैं तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे भी एक बाहर आ जाएगा और फंक्शन सेम हो जाएंगे जैसे पहले थे। तो इट मीन्स कि यहाँ से भी T1 या लेमडा वन या T1 इसी तरह T1 यहाँ से लेमडा वन जो भी कहें, T1 कहता हूँ मैं वैसे, दोनों बाहर आएंगे, सेम डिग्री के होंगे, तो लिहाजा ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। The given equation is homogeneous differential equation. It's up to you, either you check or not. You can check your visualization. आप जो है अपनी विजुअलाइजेशन से भी चेक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मुझे आप दिखाएं कि ये है कि नहीं। ओके, इफ़ यू सर्टिफाइड कि भाई, या इफ़ यू जो है अगर आप इत्मीनान हो जाए आपको कि दैट द गिवन इक्वेशन होमोजीनियस, नो इन दिस सिचुएशन आप लेट करवाएंगे y इक्वल्स टू वी एक्स, फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे जो हमने पहले भी लिया था, इधर भी लिया। फिर हमने जो डेरिवेटिव ले लिया था डी वाई अपॉन डी एक्स का, उसको हमने इस इधर रख दिया तो ये बन गया। और x तो ऐसे ही रहेगा, y की जगह पे हम लिख देंगे वी एक्स, तो हमने यहाँ पर y और y की जगह पे लिख दिया वी एक्स और वी एक्स, ठीक है।
फिर ऊपर से x कॉमन लिया, नीचे से भी x कॉमन लिया, दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, आपके पास ये बच जाएगा। ठीक है, फिर इस v को आप यहाँ भेज देंगे विद माइनस साइन। ओके, माइनस साइन के बाद इसके बाद एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये माइनस वी के साथ v+1 आ जाएगा, और एलसीएम लेने पर आपका हो जाएगा ये फाइनली न्यूमिनेटर के अंदर v-1 और माइनस वी स्क्वायर माइनस वी, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये v और ये v कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास ये बचेगा। ठीक है, आपके पास ये बचेगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बल्कि नीचे है। अच्छा जी। तो आप ठीक है, इसके बाद आपके पास बचे ये और ये कैंसिल हो गए, है ना, ये कैंसिल हो गए दोनों टर्म, तो आपके पास ये बच गया। तो उसके बाद आपने यहाँ पर क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि अब ये सेपरेबल में चेंज हो गई है। तमाम v जो है वो dv को दे दो, तमाम x dx को दे दो, जिसके आप देने के बाद आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, और आपने फिर एलसीएम ब्रेक कर दिया है, इसको v के नीचे ब्रेक किया, इसको 1 के नीचे ब्रेक किया, और ये ऐसे रहने दिया। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद हो तो ये ln के साथ आ जाएगा। उसके लिए शर्त क्या है कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे उसको 2 से। ठीक है, जैसे यहाँ करवा दिया है, ये दिखाने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे ऑलरेडी दिखाया हुआ है, तो लिहाजा इसको ज़रूरत नहीं दिखाने की। ठीक है, तो फिर वो ln के साथ उसका जवाब आ जाएगा, और इसका फॉर्मूला ऑलरेडी मौजूद होता है। उसका जवाब फॉर्मूला क्या होता है, 1/a, है ना। आप जानते हैं ना कि इसको सॉल्व करने के लिए आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जब आपके पास x² + a² दिया हुआ हो, तो 1/a tan इनवर्स x/a लिखते हैं आप। ठीक है, इसकी जो इंटीग्रेशन होती है 1/a tan इनवर्स x/a। तो a जो है वो आपका 1 है, तो 1/a लिखने 1/1 आ जाएगा, तो वो 1 के बराबर होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो tan इनवर्स x/a क्या हो जाएगा, x तो रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो x की जगह पे हमारा v है। तो ये टोटली से इसका इंटीग्रल होगा, वो क्या होगा, tan इनवर्स v, क्योंकि ये v की फॉर्म में है। और ये लेफ्ट साइड राइट साइड पे जो क्या आ जाएगा, -ln x। ठीक है, लेकिन यही यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, 1/2 के साथ ले लिया है ये इसको हम यूँ पढ़ते हैं ना, tan इनवर्स v, ये आ गया। अच्छा, इसके बाद जब आपका काम निकल गया, तो आप क्या करेंगे, इस टू को अगर चाहें तो आप जो हैं वो मल्टीप्लाई कर सब पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दें, लेकिन इसने ऐसा नहीं करवाया। चलो, जैसे इसने किया वैसे कर लेते हैं। फिर आप क्या करें, रिप्लेस कर दें v की वैल्यू क्या हो जाएगी, y किसके बराबर था, y = vx। तो v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x को शिफ्ट करना पड़ेगा y की तरफ, तो v की वैल्यू बराबर हो गई v = y/x। तो वी पुट y/x इन रिप्लेसमेंट ऑफ v², तो ये हमने v की जगह पे इसकी वैल्यू रख दी, तो ये y² x² हो गया। इसी तरह इस पर रखी x v की जगह पे x/y हो गया, राइट साइड पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर ln की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, ln की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये माइनस के साथ यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, क्या होता है, ln a/b बराबर होता है ln a - ln b, ये वो वाली प्रॉपर्टी लगाई है, बाकी ये रिमेन सेम रहा। फिर क्या किया, फिर यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगाई a/ln b की, a/ln b की। तो a/ln b बराबर होता है ln b की पावर a, ln b की पावर है। तो जब ये इसकी b की पावर बन जाएगा यहाँ पर, तो ये वाली जो इसकी पावर बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, 1/2 जो है वो उसकी पावर बन जाएगा, तो 1/2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ x बच जाएगा। ठीक है, ओके, जब x बच जाएगा तो यही आपका आंसर है। फर्क सिर्फ का ये है यहाँ पर कि ये ln x और ये ln x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना,
ये ln x और ये ln x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये और ये। ठीक है, और सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी चाहते हैं तो ये जो 2 यहाँ पे 1/2 है, ये 2 होल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2c हो जाएगा, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x पॉन y हो जाएगा, और यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा, तो वो आपका फाइनल आंसर होगा। मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है। ये कितनी बाकी है, और ये आखिरी एल क्वेश्चन एन है। एक्स हो गया ना सर? हैं, बोले बोले बोले। एल एन एक्स कैंसिल कैसे हो गया? ये ln x कैंसिल है ना, ऑपोजिट साइड पर है ना, इक्वल्स 2 है दरमियान में, राइट। नेगेटिव जब उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना सर? अबे हाँ यार, सही कह रहे हो। टू नहीं एल नहीं, एन एक्स नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं नहीं, ये नेगेटिव है। इसने साइन लिखना, ये नेगेटिव लिखा हुआ है ना, देखो ऊपर उसने साइन बहुत ऊपर लगाई हुई है, नेगेटिव है ये, अच्छा एल माइनस एल एन एक्स, एक सेम सेम साइन है, इसने ना साइन ऊपर लगा दिए। ओके ओके तो सर। ठीक है, तो इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद ये लास्ट एग्जांपल है, ये फिर ये भी देख लो, फिर हमारा जो है ये स्लाइड भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके लिए ये दिया हुआ आपके पास, अब आपने जो है चेक करना है कि ये जो है ये होमोजीनियस है नहीं है, सॉरी सेपरेबल है नहीं है, होमोजीनियस है जी। कैसे है, यहाँ से 2t बाहर निकलेगा, यहाँ से 2t, दोनों में से 2t बाहर निकलेगा, यहाँ से भी 2t बाहर निकल आएगा, दोनों की सेम जो है डिग्री हो गई, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस है। फिर हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। इस फॉर्म में लिखने के बाद हमने क्या किया, सपोजिशन लगा दी, क्योंकि ये होमोजीनियस है ना, हमने कह दिया कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो होमोजीनियस में आप ये फार्मूला लगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं थ्योरम के जरिए, y इक्वल्स टू वी एक्स। ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर इक्वेशन 1 के अंदर डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर देंगे, ये पुट कर दी, और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आपने वी एक्स पुट कर देना है, कर दिया जी। इसके बाद एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ऊपर से नीचे वाले से काट देंगे उसको, तो बचेगा क्या, -v² प्लस 2v, ये बच गया हमारे पास 2v, और यहाँ पे बचेगा v², तो ये बच जाएगा। फिर इस v को आप इधर ले आएंगे विद ऑपोजिट साइन। ठीक है, ले आए तो ये क्या होगा, 2v माइनस वी क्या हो जाएगा, -3v हो जाएगा, और -v² ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी, इसके बाद इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले लिया आपने, ओके, तो माइनस साइन कॉमन ले लिया और v भी कॉमन ले लिया। उसके बाद अब ये सेपरेबल फॉर्म में चेंज हो गई, तमाम x dx की तरफ, तमाम v और dv की तरफ, तो ये dv की तरफ नीचे भेज दिए और ये x भी नीचे भेज दिया। ठीक है जी, इसके बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। इस ये इंटीग्रेशन आपको आती नहीं है, बस 5 मिनट। हाँ, ये इस पे आप जो है वो इंटीग्रेशन लगाएंगे ना, तो इंटीग्रेशन जो है आपसे होगा नहीं, क्योंकि ये फैक्टर की शक्ल में आ गया है। तो उसको एलसीएम में ब्रेक करने के लिए हम जो है हेल्प लेंगे फ्रॉम पार्शियल फ्रैक्शन से। तो हमने यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगा ली। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाया, पार्शियल फ्रैक्शन से हमारे पास क्या आ गई, v की और b की वैल्यू आ गई। ठीक है, -3 और 1/-3। तो हमने क्या किया, फिर दोबारा ये जो था, जो a था 1/3, और ये जो b था -1/3, ठीक है, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 3/v हो जाएगा, क्योंकि a और b की वैल्यू आ गई ना, और ये क्या हो जाएगा, -3v+3। देखें यहाँ पे, और फिर उन उसको हमने माइनस जो 1/3 दोनों के साथ आ रहा था, वो हमने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, और अंदर क्या बचा, 1/b और -1/3 प्लस, ये तो माइनस किसका आएगा, b का, वैसे तो ये प्लस है, लेकिन यहाँ से -1/3 आया था, माइनस यहीं रहेगा, तो -1/y+3, उसको हमने ऐसे लिख लिया, और 1/3 दोनों में से कॉमन बाहर ले लिया। ओके, अच्छा, इन सब के साथ प्लस c भी आएगा, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। ठीक है, 1/3 ऐसे ही रहा, इसका इंटीग्रल ले लिया, ये क्या हो जाएगा, ln v हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -lnv+3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ln x, और ये हो जाएगा, इस c को आपने ln c लिख लिया। ओके, फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर प्रॉपर्टी लगेगी, सही है, इन दोनों के ऊपर प्रॉपर्टी लग रही है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि ln a - ln b वाली, तो ln
ए माइनस एल एन बी बराबर होते हैं एल एन ए अपॉन बी के, तो एल एन ए अपॉन बी लिख लिया। ठीक है, और ये राइट साइड ऐसी रही। ठीक, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप में नीचे आएगा कि आपने जो v को है ना वो रिप्लेस करवा देना है y अपॉन एक्स से, यानी कि आपने इंटीग्रेशन ले ली, उधार वापस करें और जो वैल्यूज ली थी वही वापस कर दें। तो v पहले हमने इन टर्म्स ऑफ v चलाया, अब उसको दोबारा v से जो है x और y में शिफ्ट कर देना है। तो v की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। v बराबर हो जाएगा y अपॉन एक्स के, जैसे नीचे लिखा हुआ है। तो y अपॉन एक्स के हो गया, उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, v की जहाँ जहाँ v था y अपॉन एक्स पुट कर दिया, उससे हमारे। अच्छा, और जो लेफ्ट साइड पर जो 1/3 था उसको हमने शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड पे, यानी कि यहाँ डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एल एन सी के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो एल एन सी ही रहेगा वो, क्योंकि कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, डिवाइड करें, कुछ भी करें, वो फर्क नहीं पड़ता, तो उसको एल एन सी ही रहने दिया। और जबकि एल एन एक्स जो है वो उसके साथ इजाफा हो गया 3 का। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट साइड पर जो है वो आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आप ये देखेंगे यहाँ पे y अपॉन वाई प्लस 3x आ जाएगा। और जो राइट साइड पे 3 ln x था, उस 3 को हम उसकी पावर में लेगा x की, थ्रू प्रॉपर्टी। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, a ln b बराबर होता है ln b की पावर a। तो ln की b की पावर a लगाई और उसको एज वेल एज शिफ्ट भी कर दिया लेफ्ट साइड पे। पहले वो राइट साइड पे था माइनस साइन के साथ, तो जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया तो प्लस का हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद अगेन इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाई, एल एन ए अपॉन बी वाली प्रॉपर्टी लगाई। बल्कि यूं करने की जरूरत थी, मुश्किल क्यों किया हुआ उसने। अरे यार मजेदार नहीं है, बहुत आसान हो सकता था सवाल। तो मैं कर देता आसान। यहाँ से ये लास्ट स्टेप है इस पेज का, पेज नंबर 14 का, इसे मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एल एन ख़त्म कर दूंगा ना मैं, ये करूँगा। उसने पता नहीं सवाल में एल एन तक, एल एन रखा है एंड तक, तो ये हो जाएगा यूँ। अच्छा, लास्ट स्टेप में -3 ln x, -3 था, ओके, -3 था, सही है। तो ये हमने माइनस यहाँ पे लिखे रहने दिया। बल्कि नहीं, एक और काम हो सकता है, -3 हम क्यों लिखे रहने दें। हमने क्या किया, -3 को पूरे को x की पावर पे ले गए, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है ना, x की पावर पे ले गया -3 को, जैसे लिखे जाते हैं a ln b बराबर होता है ln b की पावर a। ठीक है, प्लस ln c ऐसे ही रहेगा।
फिर मैंने एक और प्रॉपर्टी लगाई, लेफ्ट साइड ऐसे ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लग गई, एल एन ए प्लस एल एन बी बराबर होता है एल एन ए बी के। ये हो गया एल एन ए बी, लिखूंगा मैं, ये एल एन हो गया, सी इंटू एक्स पावर, ये एल एन ए बी लिख लिया मैंने। अब हमारी जान छूट जाएगी, एल एन से। ठीक है, नाउ टेकिंग बोथ साइड एक्सपोनेंशियल, ये ज़रूरत लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये अंडरस्टूड होता है तो मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। तो आपके पास फाइनली क्या बनता जा रहा है, ये वाई अपॉन वाई प्लस 3x इक्वल्स टू सी। अच्छा, ये x की पावर -3 है ना, तो अगर मुझे +3 करना हो तो ये अपॉन में आ जाएगा, है ना। तो उसको मैं नीचे लाया तो पावर पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x पावर 3 y, ठीक है, अपॉन y+3 x। अब इससे मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाई चाहते हैं तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवा दें सी से, तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। ये पावर 3 है एक्स के ऊपर, याद रखिएगा, ठीक है। यार ये नज़र क्यों नहीं आ रही, ठीक। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है, और यहाँ पर ये स्लाइड वगैरह कंप्लीट हुई, और इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले जो है वो आपकी मैं अटेंडेंस ले लूँ। अभी लाइन पे ही रहिएगा। अच्छा, जो कल मैंने एक मसला रेज़ किया था ना मोहम्मद फैसल का, तो वो मैंने कल देखा, जब मैंने कल आपकी अटेंडेंस शीट में जब मैंने मार्क लगा रहा था तो मोहम्मद फैसल की एंट्री हो चुकी थी, तो वो मसला रिजॉल्व हो गया, तो अच्छी बात है। ठीक है जी, अब आपकी अटेंडेंस हो चुकी है, ज़्यादा चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह।